my dear friends, Assalamu alaikum. Nahmadu wa nusalli ala Rasoolil Kareem. Amma ba'd. Islam के 5 फर्ज. There are 5 pillars in Islam. First one, there is no God, Allah, besides Allah, and that Muhammad is Allah's messenger. Second one, to establish prayer. Third one, to pay zakah once in a year. Fourth one, to fast during the month of Ramadan. Fifth one, for Hajj once in a lifetime. Thank you one and all. Assalamu alaikum. Rasoolil Kareem. Amma ba'd. Assalamu alaikum. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಾಶಗೊಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಇಸ್ರಾಫೀಲ್ ಸೋರ್ ಊದುವರು. ಇದನ್ನು ಊದಿದ ಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುವುದು, ಆಕಾಶವು ಬೀರುವುದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರೋ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗುವು, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಶವಾಗುವು. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯದ ದಿನ ಎನ್ನುವರು. ನಿರ್ಣಾಯಕದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವಂತರಾಗಿ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುವರು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವರು. ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವುದು. ಮನುಷ್ಯರ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುವುದು. ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯರ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವುದು. ಅಲ್ಲಾಹನೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವನು. ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ದಿನವಾಗಿರುವುದು. ಸತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆ ಆಚರಣೆ ಇರುವುದು. ದುರ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುದ್ರವಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು, ದುರ್ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಅಲ್ಲಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜನರಾಗಿರಿಸಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡು. ಅಲ್ಲಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು. ಆಮೀನ್ ಸುಮ್ಮಾಮೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಲು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಾಹ ನಿರಾಕರಿಸುವವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಸನ್ಮಾನದತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸನ್ಮಾನದತ್ತ ತೋರಿಸಿದನು. ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದತ್ತ ಕರೆಯಲು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಾಹನು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಬೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರು ಸಕಲ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸದಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ सदा दरूद है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है कि इस्लाम की तालीम। मोहतरम हज़रत, हमें दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हम सब का मालिक और खालिक भी है, हमसे खुश रहे। मरने के बाद हमको जहन्नम से बचा कर जन्नत में दाखिल करे। मोहतरम हज़रत, किसको हकीर ना समझे, किसका मजाक न उड़ाए, किस पर जुल्म न करे। माँ बाप की खिदमत करे, इनकी दुआएं ले, उस्ताद का एहतराम करे, छोटों पर रहम करे, बड़ों का एहतराम करे। हलाल रिज़्क़ खाए, हराम से बचे, किस पर जुल्म ना करे। अच्छे बातों का दूसरों को हुक्म दे, बुरे बातों के बजाय खुदा की। ಅಮ್ಮ ಬಾದ್. ಅಲ್ಲಾಹನು ಜನರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರು. अस्सलाम एक प्याली चाय बनाना ठीक है। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। क्या है? ये लो अपना खत।
शुक्रिया। चलता हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। किसका खत है? थोड़ा खोल के तो देखता हूँ। अरे ये तो मियाँ फाजिल का खत है। लगता है कि आपके कदम बोसी के लिए जुमा को हाजिर हो रहा हूँ। अब तुमको भी सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम। खुदा खुश रखे, तरक्की दे, बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने हमें याद तो रखा। हाँ, वो तो मेरा बहुत ज़हीन शागिर्द है। वो तो मेरी बहुत इज्जत करता था। तुम्हें तो याद होगा कि तुमने उसे फज्लू फज्लू कहा करती थी। हाँ, मुझे खूब याद है। फजलू को मक्का की रोटी और गुड़ भी अच्छा लगता था। हाँ, वो मेरा बहुत फरमाबरदार शागिर्द है। वो मेरी बहुत इज्जत करता था। इसी का तो फैज़ है कि मियाँ फाजिल अब लंदन तक हो आया है। आजकल ऐसे फरमाबरदार शागिर्द कहाँ होते हैं? सुना है कि मदरसों में शागिर्दों को उस्ताद ना मार पीट सकते हैं, ना डरा धमका सकते हैं। हाँ, इसी का तो नतीजा है कि लड़के पढ़ लिख कर भी जायज रहते हैं। ना पढ़ों का अदब, ना उनका दर। मगर फाजिल तो अब बड़ा अफसर हो गया है, हम इसकी खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे हमारा घर छोटा और कच्चा है, हम इसे कहाँ ठहराएंगे? अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम तो गरीब हैं, जो दाल दलियाएं खिला देंगे। हम अब अगर वो मेरा शागिर्द भी तो है, कोई स्कूल का इंस्पेक्टर नहीं। अगर स्कूल का इंस्पेक्टर आया तो भी आने कदम जो डाल दो। हम नौकर भी अब नहीं रहे, पेंशन पाते हैं 1500 रुपए माह। भला मियाँ फाजिल को कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 15,000 रुपए। कहाँ 15,000? अरे तुम भी इल्म को रुपयों में तोलती हो। अरे उस्ताद तो हर जमाने में रूखी सूखी खाकर इल्म की दौलत बांटते हैं। मगर दुनिया कब कदर करेगी इन बातों की? सारे शागिर्द तो उस्तादों को भूल नहीं जाते। अब मियाँ फाजिल को ही देखो, 15 साल के बाद भी हमें याद लिखता है कि आपकी मेहनत और तरबियत से जो मुझे इल्म हासिल हुआ है, कोई बड़ी सी बड़ी दौलत भी इसका खर्च उतार नहीं सकती। तो परसों ही तो जुम्मा है। हाँ, मैं उसे लेने जरूर स्टेशन जाऊंगा और मैं इसके लिए अच्छी अच्छी चीजें पका रखूंगी। अब मुझे अंदर बहुत काम है, मैं चलती हूँ। मेरा कुर्ता देना। ये लीजिए आपका कुर्ता। जाते जाते 2 घंटे तो जरूर लगेंगे। कम वक्त यहाँ की सड़क भी तो खराब है। यहाँ के एक भी तो बाबा आदम के जमाने के हैं। घोड़े दौड़ते क्या है, रेंगते हैं। आप जल्दी जाइए, गाड़ी का इंतजार ना करें। गाड़ी जल्दी आ गई तो बेचारा फजलू परेशान हो जाएगा। स्टेशन यहाँ से दूर भी तो है। हाँ, इंशाल्लाह मैं रेलगाड़ी के आने के वक्त पर पहुँच जाऊंगा। आप जल्दी जाइए, गाड़ी का इंतजार ना करें। मैं कहती हूँ कि वही गाड़ी आपके स्टेशन पहुँचने का इंतजार नहीं करेगी। अगर गाड़ी जल्दी आ गई तो बेचारा फजलू परेशान हो जाएगा। अरे तुम भी जो बात करती हो लाजवाब करती हो। अरे रेलगाड़ी के आने का जो टाइम मुकर्रर है उसी पर तो आएगी। हाँ अच्छा बाबा, मैं कहती हूँ कि कभी कभार भूले भटके गाड़ी जल्दी आ गई तो बेचारा फजलू परेशान हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, हाँ आप जल्दी जाइए। मैं फजलू की खीर और मक्का की रोटी बना देती हूँ। अरे ओ मियाँ, मुझे थोड़ा स्टेशन तक पहुँचा देना। स्टेशन क्यों? मेरा एक शागिर्द मियाँ फाजिल आने वाला है, उसे लेने के लिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। चल राजा चल। मेरे देश की धरती सोना उगले। लीजिए आपका स्टेशन आ गया। ये लो तुम्हारी मजदूरी की चवन्नी। चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट प्याली चाय देना।
स्टेशन है, यहाँ तो कोई कुली भी नजर नहीं आता। कुली 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 कुली। अरे बूढ़े मियाँ, ये मेरा सामान टांगे तक पहुँचा दो। हाँ ठीक है। नहीं मियाँ, मिठाई खा लेना। क्या मतलब? मैं कुली नहीं हूँ, मेरा एक शागिर्द मियाँ फाजिल लंदन से आ रहा है, उसे लेने आया था। मेरा नाम मौलवी फैजुल्ला है। मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं ये बदबख्त मियाँ फाजिल हूँ। माशाअल्लाह, अब तो तुम बड़े हो चुके हो और हमारे मेहमान भी तो हो। अब मैंने तुम्हारा सामान उठा लिया तो क्या हुआ? ये तो मेरा फर्ज था। नहीं उस्ताद मोहतरम, मैंने अपनी शान में बड़ी गुस्ताखी की। हाँ, तुम मेरे शागिर्द हो और मैं तुम्हारा उस्ताद। ये सबक हमेशा याद रख लेना। छोटे से छोटा काम भी बुरा नहीं होता, अपना काम खुद कर लेना चाहिए। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, मैं ये सबक सिर्फ याद ही नहीं रखूंगा बल्कि इस पर अमल भी करूंगा। चलो आप चलते हैं, तुम्हारी मौलियान तुम्हारा इंतजार कर रही है। उठा मियाँ, थोड़ा घर तक पहुँचा देना। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले। मोहतरम सदर, मेहमान इकराम, मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद मत ठहराओ। अल्लाह एक है और अकेला है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। मारना, जलाना, रोजी देना, सेहत रखना, तंदुरुस्त रहना, औलाद देना, उम्मीदों को पूरा करना, ये सब उसी के हाथ में है। अगर कोई ये ख्याल करे कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे में ये ताकत मौजूद है तो ये शिर्क है। खुदा ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही, यकीनन खुदा शिर्क को माफ नहीं करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चाहे कत्ल कर दे जाओ और जिला डाले जाओ, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। एक शख्स ने आपसे कहा, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, हालांकि वही तुम्हारा पैदा करने वाला है। जिन चीजों की वजह से लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, इस्लाम ने इनसे रोका है। शिर्क का बड़ा सबब ये होता है कि किसी खास शख्स का हद से ज्यादा तक रुतबा बढ़ा दिया जाए। होते होते यही चीज शिर्क का जरिया बन जाती है और लोग इस आदमी को खुदा का दर्जा दे देते हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शान में इतनी ज्यादती न करो जिस तरह यहूदी और निसारी ने अपने रिसालों की शान में किया है। एक बार एक शख्स ने आपसे कहा, ऐ मेरे आका और आका के बेटे, ऐ हम सबसे अच्छे और सबसे अच्छे के बेटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों परहेज़गारी इख्तियार कर लो, शैतान तुम्हें गिरा ना दे। मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ, खुदा का बंदा और उसका रसूल हूँ। खुदा ने जो मुझे मर्तबा बख्शा है, मुझे पसंद नहीं कि तुम मुझे इससे ज्यादा बढ़ाओ। हजारों और लाखों आदमी अच्छी तरह से जानते हैं कि देवी देवता, पीर, फकीर, शहीद दुनिया के पैदा करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हर किस्म की जरूरत इन्हीं के सामने पेश करते हैं। उठते बैठते इन्हीं का नाम लेते हैं, इन्हीं पर नजर नियाज चढ़ाते हैं, हालांकि खुदा के आगे कोई कुछ नहीं चल सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कुरैशियों, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के औलाद, ऐ अब्बास, ऐ सूफिया, ऐ फातिमा, तुम मेरे माल में से जो मांगो मैं दे सकता हूँ, लेकिन खुदा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कब्रों पर लोग सालाना मजमा करते हैं, दूर दूर से सफर करके आते हैं, नजरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोग भी कब्रों को सिजदागाह बना लेते थे। देखो मैं मना करता हूँ कि कब्रों को सिजदा करना बनाना। ऐ नफा के वक्त चेहरे से चादर उलट दी और फरमाया, खुदा यहूदी और निसारी पर लानत करे, और इन लोगों ने अपने रसूलों के कब्रों को सिजदागाह बना लिया। एक बार कब्रों को सिजदागाह बना लिया, जो अदब तरीका सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है। अगर वो किसी के साथ बर्ताव जाए तो वो शिर्क है। जैसे सजदा करना ये सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है। फकीर
नहीं करोगे। अगर मैं किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि शौहर के आगे सजदा कर रहे हैं। शिर्क की एक किस्म यह है कि अल्लाह के खास सिफतों को दूसरे में भी माना जाए। मौत, जिंदगी, रोजा देना, औलाद देना, उम्मीदों को पूरा करना, ये सब बातें अल्लाह के लिए खास है। अगर कोई ये ख्याल करे कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे में ताकत मौजूद है तो ये सही नहीं है। सब अल्लाह के मोहताज है, जो खुद से मोहताज है, वो दूसरों को क्या देंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें शिर्क जैसी कभी चीज से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर, मेहमान खुसूसी, असतिज़ाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज मेरी तकरीर का उन्वान है गरीबों के लिए मालदारों से नेकियों में आगे बढ़ने का तरीका। सच्चा मुसलमान वो है जो हमेशा उस बात के लिए फिक्रमंद रहे कि उसकी नेकियों में इजाफा होता रहे और बराबर उसकी कोशिश में रहे कि कब उसको किसी बुरे काम का मौका मिले और वो उसके जरिए अपनी नेकियों में इजाफा कर ले। बात नेकी और खैर का काम होता है, आजाद चाहने के बावजूद उसको इंसान नहीं कर सकता। मसला सदका खैरात करना चाहता है। आज उम्रा का इरादा है कि गरीबों और यतीमों की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी माल गुंजाइश नहीं है। आज सवाल है कि उस बेचारे का क्या कसूर है, अरे क्यों ये काम से महरूम है। कुछ इस तरह के सवाल आवाज़ नबी साहबा के ज़हन में पैदा हुए। चुनांचे वो इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदारान से नेकियों में आगे बढ़े। उनकी नमाजें और रोजे तो हमारी तरह है। मस्जिद, माल, बदौलत, हज, उम्रा, जहाँ सदका भी करते थे। ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसा माल ना बताऊं जिससे तुम अगले और पिछलों से बढ़ जाओ और तुम अफजल हो। सिवा उस शख्स के भी और ये है कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। मक्का के लोग हमारे नबी को बहुत सताते थे, हमारे नबी के साथियों को बहुत सताते थे। हमारे नबी के रास्ते पर कांटे बिछाते थे, रास्ते पर कांटे बिछा कर बहुत खुश होते थे। हमारे नबी को पत्थरों से मारते थे और हंसते थे। हमारे नबी के साथियों को रस्सी से बांधते थे, रस्सी से बांध कर पथरीली जमीन पर खींचते थे, पथरीली जमीन पर खींच कर बहुत खुश होते थे। हमारे नबी के साथियों को गरम गरम रेत पर लिटाते थे, गरम रेत पर लिटा कर सीने पे गरम पत्थर रखते थे, सीने पे गरम पत्थर रख कर बहुत खुश होते थे। खैर करते थे, तरह तरह के तकलीफें देते थे, तरह तरह के तकलीफें देकर खुश रहते थे। हमारे नबी और इनके साथी तरह तरह के सच पाते थे, तरह तरह के सच पाकर खुश रहते थे। अल्लाह के बातें सबको बताते थे, अल्लाह के बातें सबको बताकर खुश रहते थे। खुदा